सभासदों, माननीय सभापति जी, Memorandum of Business, message from Lok Sabha Secretary General. Sir, will your Let it be completed. Let it be completed. I will listen. Just after him, I will listen to you. I will listen after Secretary General message. But yeah, all of a sudden, we are taking the sense of the House into consideration. You announced that House will meet tomorrow at 11 p.m., 11 a.m. How can you announce like that? And you never had the pause. Just I'll give time. Please, yes, I have heard. I will reply to that. Secretary General message. sir, with your kind permission, I I've rise heard to you. report I've heard you. that the Lok Sabha at its sitting held on the 8th of January 2019 passed 1. The Citizenship Amendment Bill 2019 and 2. The Constitution 124th Amendment Bill 2019. I lay a copy each of the bills on the table. Point of order is that under Rule 12. On 19th of November, bulletin was issued informing the members about the commencement of the 247th session. And a provisional calendar was issued, and it says, I quote only one line, as at present arranged, sittings of the Rajya Sabha for the transaction of business during the 247 session have been fixed provisionally from December 11 till January 8. So it was supposed to be concluded yesterday. And there was no announcement from the chair as to whether the House has been extended till today or not. At the close of the day, the chair said the House is adjourned till tomorrow at 11, without mentioning, as per the rules, because chairman has the power. We are not questioning the power or authority of the chairman. We are not questioning the power or authority of the chairman, and no prestige issue. I am just inviting your attention to the rules and procedure. Rule 12 says, one line, under subheading, days of sittings, the council shall sit on such days as the chairman, having regard to the state of business of the council, may from time to time direct. So there was no direction from the chairman. Now what is the procedure? Procedure has been stated in this book, Rajya Sabha at Work, 3rd edition, page number 365, chapter 2. I quote only three lines. Fixation of sittings. Caption. The Rajya Sabha sits on such days as the chairman, having regard to the state of that rule 12. Then, provisional calendar of sittings. Along with the summons for a session, a provisional calendar of sittings showing the program of sittings so fixed issued to members. And said, then it says, so I have already mentioned that. Now it says, changes in the program of sittings as shown in the provisional calendar of sittings and notified in the bulletin may be made as and when necessary and announced by the chairman in the House. Kindly. Yes. I got your point, sir. Announced by the chairman in the House and notified in the bulletin. And notified, so 1 second, I am not finished, 1 second, please allow me. And notified in the bulletin. So there was no announcement, there was no notification. In protest of that, we were sitting in this House even after the adjournment, and thereafter we made a press statement, and after 7 o'clock, we found from some sources that a bulletin has been issued. रात के अंधेरे में एक bulletin publish किया गया. This is not only abridgment of the rules,
but it is totally disregard to the parliamentary procedure hitherto practiced by this house. धन्यवाद दादा, आपकी बात It is unprecedented, arbitrary and illegal. प्लीज प्लीज सर सदन को अच्छा लगता कि हम चिंता इस बात के लिए करते कि 20 दिन जो सदन चलने वाला था उसमें से 10 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए। हमारी चिंता वो होनी चाहिए थी। सदन में आप चिंता ये कर रहे हैं कि सरकार कार्य करने के लिए एक दिन बढ़ाना चाहती है, उसके पास इंपॉर्टेंट बिल्स हैं और उसको पारित करना है, और वो बिल है जिसके ऊपर लगभग, आनंद शर्मा जी मुझे बात कहने दीजिए ना जी, आप बैठिए ना, उसके बाद आप उसके बाद बोलिएगा जी। सर एक मिनट सर, एक मिनट में पूरा। विजय गोयल जी की बात रिकॉर्ड पे जाएगी। विजय गोयल जी, विजय गोयल, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज मेरे को कहा, मेरे को बोला है उन्होंने। एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए। सर मेरा आप इधर देखें, श्री विजय गोयल जी, आप इधर देखें। श्री माननीय मंत्री विजय गोयल जी, आप चेयर मेरा कहना सर ये बात करें कि प्लीज। सदन की चिंता जो 10 दिन हंगामे में चले गए, सदन चला नहीं, जनता हमको देख रही है, उसकी होनी चाहिए थी। और चिंता हम ये कर रहे हैं कि एक दिन हमने कार्य दिवस क्यों बढ़ा दिया, जबकि हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण बिल है। और आज जिस बिल के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सब पार्टियों का ये कहना है कि हम इस बिल को, जो आर्थिक आरक्षण 10% मोदी सरकार देने जा रही है, उस बिल पर लगभग सबकी सहमति है। और ये अधिकार सरकार का और चेयरमैन का जाता है कि अगर सरकार कार्य दिवस को बढ़ाना चाहती है तो वो बढ़ा सके। मैं बताना चाहता हूं, रूल 266 के अंदर भी सरकार को पावर है, और इसके साथ साथ बीएसी के अंदर भी पूरी ये चर्चा की गई कि सरकार एक दिन के लिए सदन को बढ़ाना चाहती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल सब तरीकों से इस बात की चर्चा की गई। मैं समझता हूं कि अगर ये जो बिल आया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन 124 अमेंडमेंट बिल, जिसमें सरकार आरक्षण देना चाहती है, स्वर्णों को भी 10%, उस बिल को पारित होने दीजिए और उसके ऊपर चर्चा शुरू होनी चाहिए। चाहे रूल 12 हो और चाहे रूल 226, आप बैठे, दोनों के आप ऊपर बैठे। सरकार को अधिकार जाता है। विजय जी, मैं चूंकि मैं आग्रह करूंगा कि चूंकि एक दिन एक्सटेंशन पर सवाल उठा है, इसलिए मैं इसमें अपना पक्ष कहना चाहूंगा। चेयर का मैं अपना पक्ष कहना चाहूंगा। आप प्लीज बैठे। आई हैव हर्ड योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। प्लीज टेक योर सीट्स। प्लीज टेक योर सीट्स। प्लीज टेक योर सीट्स। इस सत्र को एक दिन बढ़ाए जाने के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। कल सुबह यानी 8 जनवरी 2019 को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के एजेंडा आइटम बी के रूप में इस बारे में प्रमुखता से सूचना थी। Request received from the Minister of Parliamentary Affairs for extending the sitting of the Rajya Sabha by 1 day and accordingly scheduling a sitting on Wednesday, that is 9th of January 2019. स्पष्ट है कि हाउस एक्सटेंशन का फैसला सरकार का इस विषय में पत्र प्राप्त होने के बाद माननीय चेयरमैन द्वारा एवं सरकार समेत विभिन्न दलों के नेताओं के साथ हुई चर्चा के तहत लिया गया। बीएससी में दलों के माननीय नेता समेत कई अन्य माननीय वरिष्ठ सांसद मौजूद थे, माननीय चेयरमैन थे। इसके बाद पुनः अनौपचारिक रूप से हुई 2 बैठकों में, एक में खुद माननीय चेयरमैन एवं विपक्ष और सरकार के वरिष्ठ नेता थे। पुनः दोपहर बाद विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं, जिसमें सदन के माननीय नेता एवं प्रतिपक्ष के सम्मानीय नेता समेत बड़ी संख्या में माननीय सांसद मौजूद थे, उसमें विस्तृत चर्चा सरकार एवं विपक्ष के बीच हुई। उसके अनुरूप मैं सदन चलाने की कोशिश कर रहा था। बीएससी के मीटिंग के मिनट्स में यह स्पष्ट है, पुनः राज्यसभा बुलेटिन में इसकी सूचना है। इस फैसले के तहत कल आज तक के 11 बजे तक के लिए हाउस एडजर्न किया। यह चेयर का पक्ष देने मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि कल शाम से अब तक
बाहर अंदर कई चीजें कही जा रही हैं, पर चेयर की सीमा है कि वो बाहर कहीं कुछ कह नहीं सकता, इसलिए आपके बीच स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। अंतिम बात, मैंने जो कल 11 बजे तक के लिए हाउस एडजॉर्न किया, मेरी समझ में इसमें इंप्लाइड था कि एक दिन का एक्सटेंशन हुआ, चूंकि पहले भी बात हो रही थी। अगर यह चूक है, अगर यह चूक, आप इसको चूक मानते हैं, एक मिनट, अगर आप इसको चूक मानते हैं तो मेरी समझ का चूक है, मेरी निजी चूक है। That's all. हाँ, आनंद जी, साहब, उपसभापति महोदय, जस्ट 1 मिनट प्लीज। I've heard him. I've already heard him. I'm requesting. Please. It's the same. Still, Rule 37, no variation in the allocation of time order shall be made except by the chairman to one, who may make such a variation if he is satisfied after taking the sense of the council and that there is a general agreement for such variation. There is no agreement at all. You never took the sense of the house. I'll come to that. Please, Anand ji, कुछ हो गया? I want to answer. No. आनंद जी, मैंने कहा कि इसका आंसर मैं दूंगा, अब आनंद जी को सोने और हाउस चलने दे, प्लीज। आनंद जी, आप बोलिए। No, you will have to. I've already told it's not necessary that I will reply now. I have heard your point of view. I will come to that. Please, आनंद जी। सर, जिस तरह से सरकार आखिरी दिनों में मध्य रात्रि के समय निर्णय करती है और सदस्यों को देखिए, या तो हाउस चला लें या आप टोका टोकी करें। कृपया मैं बैठ जाता हूं, फिर आप चला लीजिए हाउस। नहीं, आप अब आनंद जी, आप उनको समझाएं ना, आप प्लीज को समझाएं। आप बैठे, आनंद जी के अलावा किसी और की बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएंगे, प्लीज बैठे। एक सैद्धांतिक बात है, माननीय सदस्यों ने, सुखेंदु शेखर रॉय जी ने और बाला सुब्रमण्यम जी ने जो बात कही है कि ये सदन किस तरह से चलेगा, सरकार का अधिकार है कि सरकार कोई बिल लाए, सरकार निर्णय करे, हम उसको चुनौती नहीं देते ना पीठ को, जो नियम है, पर नियमावली पर सदन चलता है। अब जिस तरह से ये बढ़ाई गई अवधि बिना कोई आम सहमति के हुई है, मैं इसको रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं। जहां तक पूरा प्रतिपक्ष है, हमने इसकी सहमति नहीं दी थी, सरकार की तरफ से प्रस्तावना है, ना ही बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में इस पे कोई निर्णय हुआ, ना ही कोई टाइम एलोकेट हुआ। दूसरी बात कि पहला एक बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसी परिस्थिति है कि सरकार और विपक्ष में कोई वार्तालाप नहीं है, और अगर सदन नहीं चलता, सबसे बड़ी जिम्मेवारी पहले सरकार की बनती है। सरकार सहमति बनाए, सरकार विपक्ष से बात करे, चाहे किसी भी दल का कोई मुद्दा है, किसी राज्य का कोई विषय है, यह विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं बनती। सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई सदन चलाने की, और उसके बाद बाहर जाकर विपक्ष को दोष दिया जाता है। हमने कई बार कहा, हमने कई विषय उठाए थे, नेता सदन ने भी उस बात को माना शुरू में कि आप जो विषय हमने नोटिस दिया राफेल पर, घोटाले पर, कि उस पर बहस करें, वो आज तक बहस नहीं हुई। आपने कह दिया कि हम तैयार हैं, तैयार होने से बात नहीं होती, आप दूसरी चीजें ला रहे हैं जिसके लिए सदन की सहमति नहीं है। हमने सदन में एक चीज कही थी, उपसभापति महोदय, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हो चुका, राज्यसभा के अपने निर्णय हैं, अपनी परंपराएं हैं। राज्यसभा ने निर्णय किया है कि कोई भी बिल, मैं इसके किसी के मेरिट में नहीं जाता, किसी बिल का नाम नहीं लेता, जब तक पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी नहीं होगी, वो बिल सदन में नहीं लाया जाएगा। यू कैन, बट व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, whether it's a constitutional amendment or bills on sensitive matters, it has become a habit of this government to bypass legislative scrutiny and treat this house as a mere rubber stamp. We cannot accept this. अपनी बात आप We cannot accept खत्म this करें। situation.
You take the sense of the house as per the rules. Take the sense of the house then. 0 आवर श्री चुन्नी भाई कांजी भाई गोयल। 0 आवर श्री चुन्नी भाई कांजीलाल गोयल। सर, आपने अपनी बात पूरी की करने के लिए सदन के ध्यान में मैं रखता हूं। मिस्टर गोयल सर, जब से आपकी बात जाएगी रिकॉर्ड पे, बाकी और सरकार आई है तब से गुजरात और तमिलनाडु के मछुआरे को बहुत खुशी मिली है। सर, हजारों मछुआरे पाकिस्तान के छूट गए हैं, हजारों मछुआरे तमिलनाडु के श्रीलंका ने छोड़े हैं। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है, जब से मोदी सरकार आई है तब से। सर, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में तीन फिशिंग बोट को पाकिस्तान ने पकड़ लिया। सर, ये 3 फिशिंग बोट पाकिस्तान की सीमा में फिशिंग नहीं कर रही थी। ये 3 फिशिंग बोट इंटरनेशनल समुद्री में फिशिंग कर रही थी। सर, फिर भी उन लोगों को पकड़ लिया गया। सर, इल्लीगली पकड़ लिया गया। सर, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री श्री सरकार को ये कहना चाहता हूं कि इस इल्लीगल किडनैपिंग को दादागिरी है, गुंडागिरी है, और ये तीनों फिशिंग बोट, एक फिशिंग बोट। आप नेता सदन खड़े हो रहे, कृपया नेता सदन को बोलने दें, फिर हम प्लीज कृपया अपनी बात। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष को सुनने की परंपरा इस हाउस में रही। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं। नेता Leader of the house has also yielded. I am raising something very serious. Please listen to this. Our concern is about the northeast of the country. The entire northeastern India is on fire. It affects the security and stability of India. Forget about any other discussion. The government is responsible. Home Minister must come and make a statement. There's no question of any bill. First, the Home Minister, let the northeastern India hear that the Parliament is concerned and Parliament has listened to what their cry is. If we do not do this, we'll be sending the most dangerous message to the northeastern states, and which needs to be checked. I demand from the Leader of the House, this is a serious situation. Let the Home Minister come. Please, this is our request to the government. Assure the country, assure the northeastern India that you will not proceed and do anything which threatens the very unity of the country. सर, कृपया अपनी जगह पर जाएं और नेता सदन को सुनने की परंपरा रही, अपनी सीट पे बैठे कृपया। Sir, some honorable members have raised a point with regard to the sitting of the House today. The honorable member from the AIDMK who has raised the issue under Rule 37. Rule 37 deals with allocation of time, not with sitting. Sitting is regulated by Rule 12. And therefore, this is not a case of allocation of time. He's referred to a wrong rule. The rule in question is Rule 12, where the sense of the House word which is mentioned for variation under Rule 37 is not an expression used. It's a sole prerogative of the chair, keeping in mind the business of the House. Since an important business has been pending, the chair has taken a decision. It's been a long-standing tradition. We don't question the ruling as far as the chair is concerned. Secondly, sir, the country expects the House to function. Now, on the normal working days as per the calendar, well, the answer is your answer that the country doesn't expect the House to function. On normal days, on normal working days, please take your seat. on normal working days we should have been working. On most of them, the House took adjourn. At least there is one extra day to consider important legislations. And what Mr. Anand Sharma has said with regard to Northeast, when that bill comes up, he's free to make all his observations. Therefore, you, sir, may proceed with the business of the House.
श्री राजमणि पटेल 0 आवर कंप्लीटेड। सर आपके माध्यम से मैं सरकार से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे तीनों मछुआरों को इलीगली पकड़ा गया है समुद्री सीमा पाकिस्तान की न होते हुए भी। सर ये इन्होंने क्या किया कि अपनी पाकिस्तानी मरीन जो स्टीमर थी वो अपनी हद में रखी, वहां से 65 नॉटिकल माइल नहीं जाएगी, कृपया अपनी जगह जाएं। समुद्र में उन्होंने अपनी बोट को भेजा और तीनों मछुआरों को पकड़ लिया। सर हमारी गुजरात की सरकार ने जीपीएस सिस्टम दिया हुआ है सारे मछुआरों को, इसी हिसाब से वो जहां से उन लोगों ने पकड़ा है वहां का मार्क है सर, वहां का स्पेस मार्क है, वहां से वो पकड़ सकता है कि वहां किसकी सीमा है। सब ये साबित करनी जरूरी है। अभी तक ये कहा जाता था कि मछुआरे हमेशा पाकिस्तान की बॉर्डर में जाके वहां से फिशिंग करते हैं। सर मेरा आपसे गुजारिश है, ये सरकार से आपके द्वारा सरकार से मैं विनती करना चाहता हूँ कि सारे ये रेल में न रहे, अपनी जगह जाएं फिशिंग मोटारों और सारे को चलने दे। जल्द से जल्द रिहा किया पिछले जाए। 11 दिसंबर से क्या किस तरह काम करे पूरा देश देख रहा है। श्री राजमणि पटेल आप बोले, आपकी बात ही रिकॉर्ड में जाएगी। यूरिया खाद की कमी तथा आवारा पशुओं की समस्या। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय मध्य प्रदेश विशेषकर रीवा जिले के किसान यूरिया की खाद की कमी के संकट से जूझ रहा है और नवाइयों में खबर कई समितियों में खाद नहीं मिल रही है। प्राइवेट दुकानदारों द्वारा किसानों को लूटा जा रहा है। जो भी फसल है वह आवारा पशुओं तथा नील गाय के द्वारा नष्ट की जा रही है। किसान कगार पर खड़ा है और तत्काल सरकार यूरिया के खाद की पूर्ति करे और आवारा पशुओं से तथा नील गाय से किसानों की फसल की रक्षा कर सके और इसकी सरकार द्वारा समुचित व्यवस्था की जाए। श्री के सोम प्रसाद जी प्लीज, only your speech will go on the record. Please. I could not hear. I could not let the house. Only your speech will go on the record. Please raise the issue. I could not say. Bring the house in order, sir. Please raise the issue. Otherwise, I'll go to the next person. Sir. I cannot hear, sir. Do you? Please. Shri K. Som Prasad ji, please make your point of order. Sir, I would like to draw the attention of the August House. Sir. Sir, I could not hear, sir. You speak, I'm listening your speech. I would like to draw the attention of this August House and the government to a very serious important matter, sir. The Ministry of Agriculture. This is our zero. Sir, the Ministry of Agriculture has taken a decision to close down one of the prestigious and traditional regional research station of CPCRI at Kayagulu in Kerala, sir. This station, with its research and development activities, started its function in 1937, sir. That is before independence in the princely state of Travancore. After the formation of the CPCRI, it becomes the part of it, sir. The research work in this situation is mainly related to the development of the coconut plants and its diseases, sir. The station has released the two with disease tolerant varieties and high yield hybrid coconut varieties, sir. Moreover, lakhs and lakhs of good quality coconut seedlings have also been produced and distributed throughout Kerala, sir. The service of this station is highly beneficial not only to the farmers of Kerala but also to the neighboring states also, sir. Now it is claimed that the decision to close down this station is taken by the recommendation of the
cadre review committee under ICIR to decrease the protest of the scientists? Sir, through you, I request to the government that, sir, government should withdraw the anti-farmer decision to close down Kayangula station immediately, sir. Thank you, sir. श्री हरनाथ सिंह यादव, श्री हरनाथ सिंह यादव। He was asking to make point of order. माननीय संघ लोक सेवा आयोग में हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वालों की संख्या घट रही है। अभी 2-3 दिन पूर्व शून्यकाल में माननीय एक सदस्य ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषा भाषियों की समस्या का उल्लेख किया था। आज मैं आपके माध्यम से राजभाषा हिंदी माध्यम से देश की सबसे अधिक प्रतिष्ठित लोक सेवा आयोग की सिविल सेवाओं की परीक्षा में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम के बीच उत्तीर्ण होने वाले प्रतियोगियों के मध्य गिरते हुए अनुपात के संबंध में सदन का व सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय संघ लोक सेवा आयोग में हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वालों की संख्या निरंतर घट रही है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे 370 अधिकारियों में केवल 8 अधिकारी हिंदी माध्यम से परीक्षा देकर आए हैं। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी की एक वेबसाइट के अनुसार वर्ष 2013 में हिंदी माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या 17% थी। ये आंकड़ा 2014 में 2.11%, 2015 में 4.28%, 2016 में 3.45%, 2017 में 4.06% और 2018 में 2.01% करके रह गया है। मान्यवर हिंदी माध्यम से प्रतियोगियों की संख्या में घटोत्तरी के जो तथ्य उजागर हो रहे हैं वे बड़े गंभीर और हमारे आपके लिए बड़ा गहरी चिंतन का विषय है, बिंदु है। मैं उनके कुछ गंभीर बिंदुओं को सदन और सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि परीक्षा में जो सवाल आते हैं वे पहले मूल रूप में अंग्रेजी में सेट किए जाते हैं, फिर उनका हिंदी में अनुवाद किया जाता है। ऐसे अनुवाद अधिकतर गूगल अनुवादकों से मशीनी तरीके से किए जाते हैं। भले ही ये सवाल हिंदी में हो, लेकिन इसका मतलब निकालना किसी भी मेधावी छात्र के लिए अत्यंत टेढ़ी खीर होता है। जाहिर है जब सवाल ही सही नहीं होगा तो जवाब कैसे सही लिखा जा सकता है। मान्यवर संघ लोक सेवा आयोग पर ऐसे आरोप सदैव लगते रहे हैं कि मुख्य परीक्षा की कॉपी जांचने व साक्षात्कार में हिंदी माध्यम वालों के साथ भेदभाव किया जाता है। मुख्य परीक्षा की कॉपियां जांचने के लिए जिन लोगों को लगाया जाता है प्राय उनकी भाषा अंग्रेजी होती है। ऐसे लोग हिंदी में उतने ही सहज हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। इससे अंकों में बड़ा फर्क आ जाता है। मान्यवर कई बार चर्चा यह भी होती है कि बोर्ड के सदस्य हिंदी माध्यम वालों को दूसरी नज़र से देखते हैं और अंक देने में भेदभाव करते हैं। जब वे साक्षात्कार के दौरान हिंदी में बोलना शुरू करते हैं तो उन्हें हिंदी को लेकर अपमानजनक। श्री विजयपाल सिंह तोमर, श्री विजयपाल सिंह तोमर। माननीय सभापति महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ 85% से ऊपर लघु और सीमांत किसान हैं। 1750 तक भी देश की भारत की 80% आबादी कृषि में थी। तब इसकी अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान करीब 25% था, जो अब 5% से भी कम रह गया है। आज़ादी के समय भी देश की 75% आबादी खेती में थी। तब देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 51.8% था, जो अब घटकर करीब 17% रह गया है। भारत सरकार ने किसानों की आय सन 22 तक दोगुनी करने का संकल्प लिया है। उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के साथ साथ फसल की लागत का 1.5 गुना एमएसपी घोषित करने के कुछ सराहनीय कदम उठाए हैं। मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन अभी भी देश के लघु सीमांत किसानों की जो वार्षिक आय है वो करीब 6,324 रुपये है, जो कि एक मजदूर एक दिन में 550 रुपये लेता है। तो किसान इसलिए खेती इस पैसे को छोड़ रहा है। और अब देश में लघु और सीमांत किसान जो यहाँ पर करीब इस पैसे में 75% से घसकर 55% रह गए हैं, 20% कम हो गए हैं। और क्योंकि उस समय जब देश की
अर्थव्यवस्था इतनी देश समृद्धशाली विश्व का राष्ट्र था। माननीय सुखेंदु शेखर राय जी, किसान को कृषि उत्पाद का दाम सरकारी नहीं मिलता। अपनी जगह ले और भारत सरकार ने फसलों की लागत पर रेगुलर दाम तो घोषित किया है, जो स्वागत जो कदम है, लेकिन सब जिनसों पर न तो एमएसपी घोषित होता है और जिनका होता है पूरी खरीद नहीं हो पाती। किसान क्रेडिट कार्ड पर जो कर्ज लेता है 31 मार्च तक जमा नहीं कर पाता तो अगले दिन छूट समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो फसली ऋण है। बैंकों द्वारा किसानों को शोषण होता है। माननीय मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसा तंत्र विकसित करें कि बाजार में एमएसपी से नीचे खरीदारी ना हो, खरीद करने पर दलाल हो। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड पर किसान की हैसियत के अनुसार जिस तरह उद्योगों में लिमिट बनती है, बैंक कंपनियों की लिमिट बनती है, किसान की लिमिट केसीसी पर बनाई जाए और 5 साल तक वो लेन देन करता रहे, वो क्रॉप लोन ना होकर एक लोन हो। मान्यवर जो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स है उन पर भी मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से सरकार से 0% जीएसटी किया जाए। धन्यवाद। प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी, प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। There is no order in the house, sir. डॉक्टर टी सुबीरामी रेड्डी, डॉक्टर टी सुबीरामी रेड्डी, श्री मोहम्मद नदीमुल हक। Chairman sir, India is emerging as one of the fastest growing economies and is supposed to surpass Britain this year. However, recent developments. सर इतना चिल्ला-चिल्ली हो रहा सर, कैसे सुना? श्रीमती कैसा परवीन। महोदय बहुत बहुत शुक्रिया। महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ। महोदय, सरकार का नारा है सबका साथ और सबका विकास। ये तभी सही माने में सार्थक हो जाए जब हम विकास है तो आवश्यक शिक्षा महत्व देंगे और खासकर उस शिक्षा को। माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जनाब नीतीश कुमार जी ने किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के लिए जमीन उपलब्ध कराई और 2013 में वहां स्थापना हुई। इसके बाद किशनगंज केंद्र के लिए 136.82 करोड़ रुपए का आवंटन की अनुमोदन भी किया गया, जिसके मुकाबले में अब तक सिर्फ 10 करोड़ राशि का ही आवंटन हुआ है। उसके बाद से विश्वविद्यालय द्वारा बार बार आवंटन धन उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा जा रहा है, लेकिन अभी तक धनराशि का आवंटन नहीं किया गया। महोदय, बिहार जैसे पिछड़े राज्य के इसके पिछड़े जिले किशनगंज में स्थापित एएमयू के केंद्र की स्थिति बेहद खराब है। वहां के कर्मियों का वेतन का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं, आपके माध्यम के सरकार से मेरी मांग है कि अविलंब किशनगंज स्थित केंद्र के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुरेंद्र सिंह नागर, श्री सुरेंद्र सिंह नागर, श्री सुरेंद्र सिंह नागर, श्री ए विजय कुमार, श्री ए विजय कुमार। In Kanyakumari is in the India's deepest in the end of south. Yeah, I am going to construct one national flag in my MP lakhs, spending 20 lakhs amount there. I allotted for the first 6 months. It is pending with the local government with all the necessary permissions and everything. Now the paper is pending with the National Highways, Nagai. So if the government of India will give the as early as possible, they will allot. कृपया अपनी जगह जाएं। I am going to जीरो और बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। flag in our area and host the flag in the January 26th of this year. Thank you. मैं पुनः बार बार अनुरोध कर रहा हूं, अपनी जगह जाएं और हाउस को कम से कम हाथ चलने दें। House is adjourned till 12 noon. House is adjourned till 12 noon.